So, friends, very good morning to all of you. That we have a very eminent person with us, Mr. Binu Chaturvedi. He happens to be my very close friend, colleague, and he definitely is a thorough gentleman. Man of versatile nature, very positive and philanthropic attitude, and probably has a rich experience of having worked in various places, including various states. And health is his strong point. Health in terms of Deshak inka health में अच्छा रहा है, that's okay, fine. But health is a subject in which he has been working very long. He was also associated with me at UNDP project. We had a very innovative project by the name of MSME, Micro Small Enterprise Promotion. In Madhya Pradesh, in 52 districts, he was taking charge of that particular project, and he was working on that. And probably he will be discussing with us on what the health important issues are. Ji, these are the young minds and probably the future of the nation. आपके सामने हैं. They're all interns coming from very eminent universities. They have done a lot of good work and earned a lot of degrees also. And I had an aptitude for guiding the interns. आप जानते हैं अच्छी तरह कि भोपाल में हमने करीब 70-80-100 बच्चों को इंटर्नशिप पे डिफरेंट ईयर्स में हम कराता रहा था. उसी पैशन को मैं आगे ले जाकर इन सबको कुछ सिखाने पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. More of the knowledge and experience which I have. उस संदर्भ में today we thought we always have some series. I try to get कि थोड़ा input इन सबको पूरा perspective मिले कि what the society is like. So today we'll be having Mr. Binu Chaturvedi with us. He is a veteran in the field of government sector, particularly working on the health sector. So now it is up to Binuji. Please I think you have got a presentation to make. After that, if there would be any questions, I'll invite all the students to please gain from his presence today over here. Yes, over to Mr. Chaturvedi. Thank you, Malhotra Sahab. And very nice to meet you all. And I'm sure you will all get a very nice and very effective guidance from Malhotra ji, because I know when we were in UNDP, there are about more than about 50 or 70 students who done the internship under him. So he's a very nice guide, and you all will be benefited by his long experience in this field. Thank you. Thank you, Malhotra Sahab, for giving me this opportunity to have an interaction with you all. Basically, I'm not a public health expert, लेकिन काफ़ी समय मैंने public health sector में काम किया है in various development partners like UNICEF, UNDP, PricewaterhouseCoopers. I'm presently working with GIZ and supporting MP government in implementation of Ayushman Bharat scheme, which is the world's biggest social security scheme in India. तो मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है बिकॉज द हेल्थ पब्लिक हेल्थ एक बहुत ही वास्ट एरिया है. हर चीज के लिए बहुत वास्ट डिपार्टमेंट्स हैं पब्लिक हेल्थ में, और पूरे इंडिया की इकोनॉमी या आपने बीमारू स्टेटों का नाम जरूर सुना होगा. तो ये जो बीमारू स्टेट हैं जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये आते हैं. मतलब ये स्टेट बीमार हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग कमजोर हैं. इसका लोग कमजोर हैं मतलब हेल्थ सिस्टम कमजोर है. वहाँ का हेल्थ सिस्टम कमजोर है मतलब इंडिकेटर्स जो तय किए गए हैं किसी स्टेट को पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए वो कम है या बहुत अच्छे नहीं है. ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स होते हैं, मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में, जब हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो मैं कुछ चीज़ें कवर करना चाहूँगा. एक तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर क्या है, हाउ इट्स अफेक्ट इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. उसके बाद कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं फॉर वुमेन्स एंड फॉर द चिल्ड्रंस. इसके अलावा बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताऊंगा कि व्हाट आर द नेशनल प्रोग्राम्स टू एड्रेस द नीड्स ऑफ वेरियस चैलेंजेस. और फाइनली हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे. तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम लोग समझ पाएंगे कि भारत के अंदर कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं जो हमारी इन समस्याओं को या हमारी इकोनॉमी में जो हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं हेल्थ के, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो लोगों के ऊपर आता है वो किस तरह से हम लोग उसको एड्रेस कर पाएंगे. तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए.
और इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग के जो भी क्वेरीज हो आप नोट कर लें, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम उसको एड्रेस जरूर करेंगे। Fine, is visible to all? Yes, good enough. Fine. जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी, हमारा जो देश की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, हमारे इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी। तो आप में से काफ़ी लोग जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इकोनॉमी के बारे में समझ पाएंगे। आई एम नॉट इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, लेकिन बहरहाल हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इकोनॉमी में अफेक्ट करती है और प्रोडक्ट डायरेक्टली लिंक विद द हेल्थ सेक्टर। यदि हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होगा, स्ट्रॉन्गर हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री कैन लीड ए बेटर आउटकम ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रंट्स। फाइन, वो कैसे करेगा? यदि हमारा जो वर्कर हेल्दी होगा, ही गिव ए गुड प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी और वो जो डिजीजेस, बर्डन ऑफ डिजीजेस का जो पैसा अननेसेसरी खर्च कर रहा है वो बचा पाएगा। तो इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कुछ मेजर इश्यूज हैं भारत के अंदर, जैसे नेग्लेक्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। अगर हम देखें तो हमारी रूरल पॉपुलेशन में जो हेल्थ सेक्टर है, हमारे डॉक्टर्स लोग वहाँ नहीं जाना चाहते, हमारी बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पर, उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है अगर छोटा सा इलाज कराने जाएं। तो एक किसी तरह से, और जबकि हम ये मानते हैं कि 76% पॉपुलेशन हमारी गाँव में रहती है, उसके बाद भी जो हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में इतना भी डेवलप नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर है वो है स्टेट है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बाद ग्राम सभा हैं, विलेजेस हैं। तो विलेजेस में तो हमारे जो रेवेन्यू विलेज हैं उसमें सब सेंटर होते हैं, सब सेंटर्स। उसके बाद ब्लॉक्स में आएंगे तो वहां पर गांव में और पीएससी भी होती हैं, मतलब 4, 5, 8 गांव को मिला के एक पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, और आजकल गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी वहां पर खोल रखे हैं। दीज आर बेसिकली फॉर द प्राइमरी में टू एड्रेस द नीड्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ, जहां हम बहुत ज्यादा छोटी मोटी बीमारियों को तो ठीक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने वेल नहीं होते। इसके बाद ब्लॉक लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो इनके पीएससी के रेफरल सेंटर्स होते हैं, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। वहाँ हम लोग थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट हो जाता है। इसके बाद थर्ड आता है दैट इज द टर्शियरी केयर्स, जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में, जो डिस्ट्रिक्टों पे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। तो ये किसी तरह से अगर हम बोलें तो एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हम रूरल पॉपुलेशन को अभी हेल्थ सेक्टर में नेग्लेक्ट किया हुआ है। एम्फेसाइज ऑन कल्चर मेथड्स, हम लोग बहुत सारे जादू टोना और इन सब पे बिलीव करते हैं। गांव में अक्सर देखा जाता है कि इन चीज़ों पे वो मानते हैं कि ये सब चीज़ों से बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनएडुकेट आउटलेट ऑफ हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि आउटलेट्स हमारे गांव लेवल पे अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है जो हमारी हेल्थ सेक्टर को एड्रेस कर पा जाए। सोशल इनइक्वालिटी, अगर हम देखेंगे तो वहाँ जितने भी हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, अगर आप प्रोमिनेंट डोमिनेंट हमारे एससी और एसटी डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे तो वहाँ जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो बाकी जगह से बहुत खराब हैं। तो किसी तरह से हमारी सोशल इनइक्वालिटी तो होती है। अक्सर जो हम यूपी के, अगर आप लोगों ने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अगर आप गांव में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, तो आपको साफ सोशल इनइक्वालिटी दिखेगी। अगर वहां पर एएनएम वैक्सीनेशन कराने आती हैं तो वो कुछ पर्टिकुलरली समाज के लोगों को थोड़ी उस दृष्टि से देखती हैं और वो ऐसे उनको मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते वो लोग। तो एक ये सोशल इनइक्वालिटी अभी भी हमारे देश में गांव स्तर पर काफी प्रचलित है, ये है कि
मेडिकल पर्सनल्स की बहुत कमी है। अभी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 1/1000 डॉक्टर हैं, जबकि जो आइडियल कंडीशन है इस 259 पर 1000 होनी चाहिए। तो एक तो डॉक्टर्स की कमी है, गांव में नहीं जाना पसंद करते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें हमारी मेन इश्यूज हैं हेल्थ सेक्टर के। मेडिकल रिसर्चेस बहुत कम है इन कंपैरिजन टू, अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखिए, उसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी मेडिकल रिसर्चेस बहुत कम है। और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। यदि हमारा कोई मरीज भर्ती हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट, उसके इन्वेस्टिगेशंस बहुत कॉस्टली हैं। तो ये पूरी कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया के। अब इनको दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स जारी किए हैं। अब हम उसको आगे चलते हैं। अगर हम चैलेंजेस ऑफ हेल्थ फॉर वुमेन्स इन द नेशन, खास तौर से ये शुरू होता है माल न्यूट्रिशन से। जब हम एडोलेंस स्टेज पर होते हैं, जब से शुरू होता है, अक्सर ये देखा गया है कि जो वुमेन्स होती हैं, पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज की, उनमें एनीमिया बहुत ज़्यादा होता है। और तब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका मैटरनल हेल्थ जो होती है, जैसे बोला जाता है कि वो एक अच्छा डाइट लें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, जिसको एएनसी चेकअप बोलते हैं। वो कम से कम प्रेगनेंसी के दौरान 3 बार करना चाहिए। और एनीमिया दूर करने के लिए 100 फॉलिक एसिड की दवाइयां लेनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है। और 2 टेटेनस के इंजेक्शन लेने चाहिए। ये बेसिकली प्राइमरी थिंग है जो एक प्रेगनेंसी के दौरान लेनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ों में लैकिंग करते हैं। और इसके ये होता है, नतीजा ये होता है कि माल न्यूट्रिशन होती हैं, तो वो कमज़ोर बच्चा पैदा होता है। और वो जो चीज़ होती है दैट इज इरिवर्सिबल, वो ठीक नहीं हो सकता। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, डोमेस्टिक वायलेंस, एड्स, ऐसी बीमारियां हैं जो शायद बहुत प्राइमरी स्टेज पर हम उनको रूरल एरियाज में पकड़ भी नहीं पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं इन द रूरल एरियाज फॉर द वुमेन्स। इसके अलावा जो टोटल हेल्थ है उनकी, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सब पे भी माल न्यूट्रिशन बहुत गहरा असर डालती है। इसी तरह हम देखें तो रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टेलिटी। अभी हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीमारू स्टेट्स में जो इंडिकेटर्स हैं वो आईएमआर बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, एंड एमएमआर इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। ये 2 अहम इंडिकेटर्स हैं जो ये तय करते हैं कि वो राज्य बीमारू स्टेज है कि नहीं है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये 2 अहम इंडिकेटर्स हैं। तो अगर हम देखें तो बच्चों की खासतौर से मोर्टेलिटी रेट्स इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा है। वो कुछ बच्चे लगभग, अगर मैं आपको फिगर्स में बताऊं तो लगभग 29 बच्चे पर 1000 अपना 5 साल का बर्थडे भी नहीं देख पाते, और इस बीच ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके कारण ये होता है कि एक तो वो माल न्यूट्रिशन होते हैं, उनकी जो केयर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ न्यूबॉर्न की, मतलब जो अब अभी तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने लगी हैं, नहीं तो पहले होम डिलीवरीज काफ़ी होती थी, जिसमें कारण काफ़ी बच्चों की और माओ की डेथ हो जाती थी। तो न्यूबॉर्न केयर्स की अभी हमारे यहाँ कमी है। ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया है, लेकिन स्टिल वी आर लैकिंग इन दैट। उसके बाद वैक्सीनेशन, जो एक स्टैंडर्ड WHO ने प्रोटोकॉल वैक्सीनेशन का किया है, उसमें भी वो एक 100%, अगर हम बोलें कि 100% वैक्सीनेशन हो गया है, तो वो अभी फिगर बहुत कम है। इट इज स्टिल अबाउट 30 to 40% के रेंज में है। क्योंकि जैसे हम डीपीटी के 3 टीके लगने चाहिए, तो डीपीटी का 1 टीका लगने के बाद तब बच्चों को बुखार आने लगता है। तो उनके माता पिता सोचते हैं कि हमको पूरा अपना काम छोड़ के घर बैठना पड़ेगा, तो वो बाकी के वैक्सीनेशन नहीं लगवाते। इसी तरह बीसीजी लगने के बाद बच्चों को बुखार आता है, डीपीटी के बाद बुखार आता है, तो वो लोग नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण जो पूरे 100% वैक्सीनेशन अगर हम बोलें तो वो पूरा नहीं हो पाता। और जो खास तौर से बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो गाँव में डायरिया की वजह से, एक तो हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, बच्चे गंदगी में खेलते हैं, सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखते हैं, अपना हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको डायरिया, निमोनिया ऐसी बीमारियां होती हैं, और जो एक उनकी मृत्यु दर बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है।
दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव चीजें जो होती हैं, जैसे अभी कोरोना का जो चल रहा है, हम उसमें प्रिवेंटिंग एस्पेक्ट ये बोलते हैं कि आप मास्क लगाइए, आप सैनिटाइज करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। दीज आर थ्रू एडवोकेसी करते हैं। ये कोई इलाज नहीं है, इस जिससे हो नहीं, जिससे हमारे चांसेस थोड़े कम हो जाएं कोरोना होने के, तो दिस आर द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। वैक्सीनेशन इज आल्सो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, कि हमको अगर हम टाइफाइड का वैक्सीन लगवाना है तो एक प्रिवेंटिव है कि टाइफाइड ना हो, या अभी जो कोरोना के वैक्सीनेशन चल रहे हैं वो कोरोना आगे ना हो। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, वैक्सीनेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग एंड द सेल्फ हाइजीन। क्यूरेटिव में हमारे यहाँ जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर। प्राइमरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव लेवल पे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद उनको रेफर किया जाता है फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल इन ब्लॉक लेवल, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है। इसके बाद फिर भी अगर वो मरीज ठीक नहीं होता तो उसको रेफर कर दिया जाता है फॉर द टर्शियरी ट्रीटमेंट, जहां वो शहरों के अंदर जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनका केयर होता है। तो जो आयुष्मान भारत योजना मैं आपको बता रहा था, जो अभी 2 साल पहले लागू की गई है, इज बेसिकली कैटर द नीड ऑफ टर्शियरी केयर। वो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर पे भी करती है, लेकिन इसका मेन मकसद टू गिव द ट्रीटमेंट फॉर द बेनिफिशियरीज फॉर द टर्शियरी केयर। पब्लिक हेल्थ कवर्स, बेसिकली ये सब चीजें कवर करती है। पब्लिक हेल्थ इज अ बिग अम्ब्रेला जो कवर करती है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंक्रीज इन सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू द ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। पब्लिक हेल्थ के अंदर ये सब चारों चीजें आती हैं, सफाई, स्वच्छ पानी, इम्प्रूव हेल्थ एंड सैनिटेशन। जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, दैट इज क्रूड डेथ रेट्स, अभी जो है वो दैट इज 7.3 पर 1000 है। जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 69, जबकि अगर हम यूएसए और दूसरी कंट्रीज में देखें तो कहीं ज़्यादा है ये। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी हमारी 28.3 पर 1000 है, जिसको और कम किया जाना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स अभी 72 पर लैक्स है, जिसको बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं कि इसको और कम किया जाए। और जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो काफ़ी कम हो गया है। जब मैं पब्लिक हेल्थ में आया था तो इट वाज 4.8, मतलब कि एक स्वस्थ माँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कितने मैक्सिमम चाइल्ड्स को बर्थ कर सकती है। तो अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2.8 इन मध्य प्रदेश है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जबकि जो बीमारू स्टेट्स की मैं बात बता रहा हूँ, वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ लगभग 3 के आसपास है, 3.2, 3.6, और मध्य प्रदेश में भी 2.8 है। ऐसा बोला जाता है, जब मैं SHGs के लिए काम करता था, सब ये हेल्थ ग्रुप्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, तो उनका वो छोटी छोटी सेविंग करते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, और वो अपने लिए लोन लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन एक स्टडी में पाया गया कि मोस्ट ऑफ देम टेक लोन फॉर द हेल्थ ट्रीटमेंट्स फॉर देयर फैमिली। 60% जो महिलाएं लोन लेती हैं वो अपने हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए लेती हैं। मतलब हम लोग अगर देखा जाए तो जो भी हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं उसमें 64.2 हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो बहुत ज़्यादा है। और हम रूरल एरियाज में देखें तो हमारी जो टोटल हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं उसका 6.3 से 7.73 हमारा एक्सपेंडिचर हेल्थ के ऊपर होता है। अर्बन एरिया की बात करें तो अबाउट 5.5 एंड 5.7 जो भी हमारी टोटल अर्निंग्स है उसका 5% हम लोग हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं। और ख़ास तौर से जो इंडिकेटर्स जो बेसिकली चीज़ों पे हम करते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स फी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस, अदर मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ये अर्बन हो चाहे रूरल हो, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन कुछ जगह पर ये ज़्यादा है, कुछ इंडिकेटर्स में ये कम हो सकता है। अब जैसे अगर हम रूरल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो
अगर अर्बन एरिया में 3% है तो रूरल एरिया में 4% है, क्योंकि उन्हें काफी लंबी यात्रा करके हेल्थ बेनिफिट तक पहुंचना होता है। एसडीजीज के लिए मैं बहुत ज्यादा आपको बात नहीं करूंगा कि मल्होत्रा साहब इज अ वेरी राइट पर्सन जो आपको एसडीजीज के बारे में और डिटेल में बताएंगे। एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन ने बनाए, जिसमें 193 कंट्रीज जो इसकी यूएन जनरल असेंबली की सेक्टर हैं, उन्होंने एक एजेंडा रखा कि 2030 तक हम ये 17 इंडिकेटर्स हैं, गोल्स हैं, और उसके 169 छोटे छोटे टारगेट्स हैं और लगभग 3000 से ऊपर इसकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth। ये ऐसे 17 गोल्स हैं। इससे पहले एक एमडीजी गोल हुआ करते थे जो 8 थे, जो 2015 में खत्म होने थे। उसके बाद उन्होंने इसको और इंक्रीज किया कि कुछ कुछ एरियाज में काम नहीं हुआ था, तो 2030 तक इसको ये भी बोला जाता है कि एजेंडा 2030। तो इसमें बहुत डिटेल में मल्होत्रा साहब को बताएंगे, क्योंकि आपने एसडीजीज के ऊपर काफी स्टडी की हुई है। और अगर हम इसको सिर्फ हेल्थ के इश्यूज में देखें तो हमारे लिए जरूरी है एक तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग इन एसडीजी नंबर 3, उसके बाद 6 नंबर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये डायरेक्टली हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स पे असर करते हैं, एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली नो पॉवर्टी नो जीरो। अगर हमारा हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कम होगा तो डेफिनेटली इट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट द पॉवर्टी ऑल्सो। ये पूरा एक चार्ट है 17 गोल्स का। इसके बाद हमारे 2 सेक्टर हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सैनिटेशन। जैसा आपको मैंने बताया, जो अभी जो मेजर न्यूट्रिशन प्रोग्राम भारत में चल रहे हैं, वो एक चल रहा है आईसीडीएस प्रोग्राम, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज बोलते हैं। विटामिन ए प्रोग्राम चलता है, जिसमें हर 6 महीने बाद बच्चों को विटामिन ए सप्लीमेंट दिया जाता है 6 साल तक के लिए। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एनीमिया के ऊपर चलता है। मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, जिसमें बच्चों को स्कूल के बच्चों को खाना दिया जाता है न्यूट्रिशन फूड, जिससे एक तो स्कूल में आने की बच्चों की अटेंडेंस बढ़ गई और साथ में उनको न्यूट्रिशन फूड भी मिलता है। मिड डे मील स्कीम है, जिसके अंदर उनको जितने भी हमारे सोशल कास्ट नीड, इन सबसे ऊपर ये हमारे बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन के बीच में नहीं आने देती। कास्ट एंड क्रीड का जो भी गांव में माना जाता है या जो डिस्टेंस बना के रखा है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। तो जितने भी ऐसे ऑर्डर हैं, ये न्यूट्रिशन सेक्टर के चीजें हैं, जिसमें इन्होंने ज्यादातर माल न्यूट्रिशन कम करने के लिए ये अपने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं इंडिया में, जिसमें अभी आईसीडीएस प्रोग्राम इटसेल्फ अम्ब्रेला, जिसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स भी काम कर रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, बिल गेट्स मेलिंडा फाउंडेशन भी इसके अंदर काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो आईसीडीएस के अंदर न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग के लिए भारत में जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो एक चल रहा है आयुष्मान भारत योजना। इसके बारे में डिटेल में आपको आगे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लक्ष्य प्रोग्राम, जो हमारे पीएससीज वगैरह में लेबर रूम्स क्वालिटीज का इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन एक अम्ब्रेला है। पहले आरसीएस प्रोग्राम और ये सब अलग अलग चला करते थे। बहुत सारे प्रोग्राम अपने अलग अलग उनकी आइडेंटिटी थी और अलग अलग चला करते थे। बाद में गवर्नमेंट में एक नेशनल हेल्थ मिशन बनाया, जिसके अंदर जितने भी प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ से रिलेटेड, वो उसको नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर डाला है। इट्स ऑल इंक्लूड वैक्सीनेशन, मदर एंड चाइल्ड केयर, आरसीएस प्रोग्राम,
जितने भी ऐसे प्रोग्राम वेलफेयर के लिए चलते हैं, हेल्थ के लिए, वो सब नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर डाले गए। पहले इसका नाम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसको बाद में हटाकर नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया, क्योंकि इसमें अर्बन एंड रूरल बोथ द सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं। अभी जो शुरू हो रहा है दैट इज अ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। मतलब गवर्नमेंट का अप्रोच है कि यूनिवर्सल हेल्थ अप्रोच की तरफ वो जा रहे हैं, और हर एक व्यक्ति को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, जिससे कि वो अपना इलाज अलग शहरों में जाकर भी करा सकता है। तो ये इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट का काफी ध्यान है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये अभी बहुत जोरों से चल रहा है, और शीघ्र ही ये इसकी शुरुआत हम सब तक पहुंचेगी। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन इज अम्ब्रेला, उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, क्या क्या प्रोग्राम है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो कम्युनिकल डिजीजेस में रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल फिलारिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलेंस प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम। जो अभी हमारा कोरोना से रिलेटेड प्रोग्राम है, वो अभी 5 नंबर पर जो इंटीग्रेटेड डिसीजेस सर्वेलेंस प्रोग्राम है IDSP, ये अभी चल रहा है। इनके पूरे मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं हर स्टेट के अंदर, जो कोरोना के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं। हर स्टेट में कितने केसेस आ रहे हैं, कितने पेशेंट एडमिट हैं, वो ऑक्सीजन की सप्लाई है कि नहीं है, पर्याप्त बेड्स हैं कि नहीं है, वेंटिलेटर्स हैं कि नहीं है, और जो भी दवाइयां पर्याप्त कोरोना के इलाज के लिए होनी चाहिए वो सब हैं कि नहीं है, ये पूरा IDSP सेल जो है वो देखता है, और हर एक स्टेट में ये मॉनिटरिंग सेल एंड कंट्रोल रूम्स इनके बनाए गए हैं। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में इंजरी एंड ट्रामा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, कार्डियल वेस्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक, नेशनल प्रोग्राम ऑन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, national program for prevention and control of fluorosis, national tobacco control program, national program for health care of the elderly। ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो पहले सब अलग अलग चला करते थे, अलग अलग इनके ऑफिस थे, और सब चीजें अलग अलग आइडेंटिटी थी, लेकिन अभी सब ये NHM के अंदर आ गए। इसके अलावा जो मैंने आपको अदर प्रोग्राम बताए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में चलती हैं, ICDS स्कीम, मिड डे मील प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में चलता है राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, and national health mission is ultimately the umbrella. It gives financial assistance to various states and union territories for health system strengthening. कंपोनेंट ऑफ NHM के हैं, एक तो हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, जैसा बताया मैंने आपको, एडॉप्शन ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेंस हेल्थ एक बहुत बड़ा एरिया है ये वाला जो NHM के अंदर देखा जाता है, जिसमें खासतौर से हम ये मानते हैं कि जो हमारी रूरल एरिया में 15 ईयर्स से लेके 49 एज इज बेसिकली ए वेरी एज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जिसमें खासतौर से बहुत सारी बीमारियां होती हैं रिलेटेड टू चाइल्ड एंड मदर केयर रिलेटेड, वो पूरी जो एड्रेस की जाती है ये RMCH+A मींस एडोलेंस हेल्थ से। बेसिकली शुरू होता है एडोलेंस हेल्थ से, जहाँ हमारी एडोलेंस उम्र की जो लड़कियां हैं उनको न्यूट्रिशन फूड और आगे की चीज उनको हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड चीजें उनको बताई जाए, जिससे कि वो जब एक मदर बने तब भी एक स्ट्रॉन्ग मदर बने और स्वस्थ बर्थ दे पाए, और जितनी भी न्यू बॉर्न डिजीजेस, मदर केयर से रिलेटेड डिजीजेस हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है NHM का जो ये चला रहे हैं। मैटरनल हेल्थ में बहुत सारी आपने नाम सुना होगा, जननी शिशु सुरक्षा कल्याण, जननी सुरक्षा योजना, इसके अंदर वो बेसिकली फोकस करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और उसके बाद कुछ इंसेंटिव भी देते हैं फॉर द प्रेग्नेंट मदर्स।
चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो लिस्टेड किए हुए हैं। इम्यूनाइजेशन भी एनएचएम के अंदर आता है, दैट इज अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हर वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हर एक गांव में इम्यूनाइजेशन कैंप लगते हैं, जिसमें प्रयास ये होता है कि जितने भी टारगेट अप्रोच के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन हो। पल्स पोलियो प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम एनएचएम का है। आपने देखा कि भारत में पहले पोलियो से कितने बच्चे अपंग हो जाते थे, लेकिन अब भारत मुक्त हो गया है इस पोलियो प्रोग्राम से। खासतौर से अभी लास्ट में यूपी के अंदर ये इसका बहुत गहन अभियान चल रहा था पल्स पोलियो प्रोग्राम का, जिसमें अमिताभ बच्चन भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उन्होंने जिसमें यूनिसेफ, WHO और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पल्स पोलियो प्रोग्राम में सोशल मोबिलाइजेशन करते थे, वैक्सीनेशन करते थे। ये सब एनएचएम के ही काम है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हाइजीनिक स्कीम, नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री प्रोग्राम, एडोलेंस फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स। ये जो गोल हैं एनएचएम के गोल बोलूं या हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स के गोल बोलूं या भारत सरकार ने के गोल बोलूं या इनडायरेक्टली हमारे एसडीजीज पर ये असर करेंगे। इनका है कि रिड्यूस करना है एमएमआर 1 पर 1000 लाइव बर्थ, आईएमआर को रिड्यूस करना है, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन्स ये दूर करना है, prevention and reduce mortality and morbidity from communicable and non-communicable injuries and emergency diseases, reduce household out-of-pocket expenditure on total healthcare expenditure, reduce annual incidence and mortality from tuberculosis by half। और उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे एसडीजीज पर असर करते हैं, और जिससे हम अपना जो इंडिया का टारगेट है एसडीजीज का वो पूरा करेंगे। एनएचएम से जो हमारा बीमारू स्टेट का जो एक तमका लगा हुआ है उसको स्टेट्स दूर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 2 कंपोनेंट हैं। एक इनका काम है सेटिंग ऑफ द न्यू एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो उन्हें बहुत सारे एम्स अभी रिसेंटली खोले हैं, 2012 में ये खोले गए थे। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तरांचल। इनका बेसिकली काम, ये जितने भी हमारे एम्स खुले हैं ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर ही खोले गए हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जो एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके लिए अभी प्रेजेंटली मैं भी काम कर रहा हूँ। इसमें दिस इज बेसिकली ये एंटाइटलमेंट स्कीम नहीं है, ये बेसिकली एंटाइटलमेंट स्कीम है, एनरोलमेंट स्कीम नहीं है। 2011 में एक सोशल इकोनॉमिक का सर्वे हुआ था जिसमें जो भी उस वक्त हमारे बेनिफिशरीज थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते थे या कुछ ऐसे थे जिनके पास कच्चा घर है या किसी के घर में कमाने वाला कोई नहीं है या जिसमें पूरे घर में एक महिला ही उसका हेड करती है, ऐसी कुछ कैटेगरी D1 से D7 तक कैटेगरी हैं हमारे सेंसस के उसके अंदर। तो D6 वाली को छोड़ के जितने भी उस कैटेगरी में आते हैं उन सभी को आयुष्मान का एक बेनिफिशियरी माना गया था और उसके अंदर 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक फैमिली पर वो अपना इलाज कैशलेस तरीके से जितने भी इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उसमें करा सकते हैं। तो अगर देखा गया तो 10 करोड़ पूरी अगर हम भारतवर्ष का देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशरीज हैं जो आयुष्मान भारत से की सेवाओं का फायदा ले रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के इसमें क्योंकि मैं काम कर रहा हूं तो लगभग 5 करोड़ इंडिविजुअल लोग हैं जो करीब 765 इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट, सरकारी और मेडिकल कॉलेज, जिसमें अपनी हेल्थ सर्विसेज का वो बेनिफिट ले पाते हैं कैशलेस तरीके से। थैंक यू। थैंक यू बिनू जी। कैन वी कम टू द मेन स्क्रीन प्लीज? यस, धन्यवाद। बिनू जी ने हम सबके सामने आज हेल्थ में कितना कुछ हो रहा है उसके बारे में एक बड़ा संक्षेप में बताया। शायद इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे plethora of initiatives are being taken, but yes, health is one of the critical subjects for any nation to develop. मैं यहाँ रोकते हुए मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, if you have some queries, questions or anything, please share with Binu ji. Then we'll continue the presentation later on. Yes, anybody please.
Yes, Srijan, you want, please, Srijan. Thank you for a really good, really great presentation, sir. So just one question. Do you think that there are enough initiatives being taken concerning female health, particularly policy interventions? Enough है अभी इंडिया में? देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इनफ तो नहीं है, क्योंकि अगर बेसिकली 76% हमारे रूरल एरियाज में पॉपुलेशन रहती है, तो वहाँ अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है. Although there are various programs, this ongoing program is going on, like Ayushman Bharat is basically to address these needs. If they are the card holders of the Ayushman Bharat, they are entitled to get quality treatment in urban areas free of cost. Not all in the state where they are residing, but they can take the treatment even the outside also. If they need it for the cancer treatment or for the major diseases, they can go for outside also for the treatment. So, but still, I can't say that a lot of things are happening, but still, government is doing to address these needs. Right, sir. Thank you. So, just one Yeah, additional. please. Yeah. So since like India is day by day, the number of cancer patients is increasing in India. So do you think that जैसे आपने mention करा था कि National Health Mission के अंदर कितने सारे programs एक साथ कर दिए उन्होंने पूरे उसके अंडर ही combine कर दिए. So do you think that there is a need for specific programs now? Like I was reading जैसे breast cancer का there is one in every 29 female has a chance of getting breast cancer. So, do we need specific policies for such issues as well? Yes. There is अभी recently the government has also constituted a tuberculosis board. उनका मकसद है कि जो भी ऐसे cases हो वो उनके सामने लाए जाएं. And apart from that, there are so many development partners who are also supporting the government, like the Clinton Health Foundation. This is basically working for tuberculosis and cancer. And there are many other international organizations also supporting for the implementation of this program. Because government can't do each and everything. They need the support for the international bodies, and there are international organizations which are supporting this program. Okay, sir. Thank you so much. Yes. Anybody else? So I have a question. Please Sir, go ahead. actually, Binu sir, I want to know that आपने बताया that there are so many policies which government and even so many missions which government have for the rural sector. Even we know that there are many corporates who are also engaging from their CSR points to the rural sector upliftment and all, but still it's very, very neglected. So वो मतलब where is the gap and like any kind of a thing or उस gap को कम करने के लिए क्या solutions हो सकता है? Something from your experience, sir. देखिए gap तो एक बहुत बड़ा gap तो है कि when things are there, hospitals are there, schemes are there, but there is a lack of awareness among the जो beneficiary उसका फायदा लेते हैं, उनको नहीं पता कि वो किस तरह से उसका फायदा ले पाए. Things are there. गवर्नमेंट का अगर मैं बोलूँगा तो there are so many hospitals, there campaign भी लगाते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता. फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत के बारे में भी अभी रूरल एरिया को बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसके क्या डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं. तो एक अवेयरनेस और आईसी की बहुत ज़रूरत है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर्विस को तो बेहतर करना ही है, साथ में ये आईसी की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. Thank you. Yes. Anybody else? I have a question that क्या awareness के अलावा funds की भी ज़रूरत है, like is there enough fund? There are enough fund की कोई कमी नहीं है. मैं किसी भी सेक्टर में कोई फंड की कमी नहीं है, ना भारत सरकार के पास, ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ना जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, फंड्स की तो कोई कमी नहीं है. कमी है इच्छा शक्ति की. अगर हम गवर्नमेंट से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिसयूज हो जाता है. तो वो लीकेज है. ऐसा भी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स की कमी है. डॉक्टर्स भी अपॉइंट होते हैं, वो नहीं जाना चाहते, तो कुछ ना कुछ बहाना बना के इधर उधर में अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं. एक इच्छा शक्ति की कमी है. अदरवाइज फंड्स की तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी स्तर पर कमी.
सर म्यूट है आप. Oh, sorry. Yes. Any other question? Any query? Any suggestion? Anything? Yes, sir. I Probably have a we- question. Yeah, please. मेरा क्वेश्चन भी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड था. मेरा क्वेश्चन सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड था, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फॉर वुमेन. बट क्योंकि रूरल एरियाज़ में वो चीज़ें एक्सेसिबल नहीं होती है या उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. और बहुत कंट्रीज़ लाइक स्कॉटलैंड ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है. तो मुझे जानना था सर कि ऐसी कोई स्कीम है जो कि इंडिया में भी ये चीज़ें, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ एनजीओज हैं जो इसमें पहल किया है. वो एडोलेंस गर्ल्स के लिए गांव में वो जैसे एटीएम टाइप की मशीन होती हैं वैसी उन्होंने लगाई हुई हैं. बहुत जगह लगाई हुई हैं. और लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ये प्रयास अभी शुरुआत है. इसमें और अभी आगे बढ़ना है. लोग अभी बहुत यूज्ड टू नहीं हुए हैं इसके. रूरल एरियाज में खासतौर से बहुत ध्यान इसको एडवोकेसी की जानी है. लेकिन स्टिल मतलब अगर जो भी प्रयास कर रहे हैं वो उठ के मुंह जीरे के बराबर ही मैं कहूँगा. अभी हो तो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है. Right. Thank you. Yeah. Anybody else? सर मेरा एक छोटा सा सवाल है. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं भी ये रियलाइज करती हूँ कि आपने अभी बोला कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स बहुत सारी हैं और कई सालों से हम देखते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार कर रही है जो भी है. मुझे ये लगता है सर, जैसे आपने कहा इच्छा शक्ति की कमी है सर, तो मैं जानना चाहूंगी किसकी इच्छा शक्ति, मतलब अवेयरनेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, इतना आजकल एडवर्टाइजमेंट है. और अगर हम करंट प्राइम मिनिस्टर को देखें तो वो रेडियो पे भी बोलते रहते हैं सारी स्कीम सब कुछ, कि इट रीचेस आउट टू द लास्ट मैन इन द कंट्री. सो आई ऑल्सो फील कि ये गांव के लोग या जिनको सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द चैलेंज, द बिगेस्ट चैलेंज तो आप देख रहे हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी. क्योंकि मुझे भी फील होता है कि फंड्स की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, इंटरनेशनल एजेंसीज, डेवलपमेंट एजेंसीज काम नहीं कर रही, बट फिर चैलेंज कहाँ आता है? क्योंकि हमें यही लगता है हम वहीं के वहीं खड़े हैं या थोड़ा आगे जाते हैं या थोड़ा पीछे जाते हैं, बट फिर वही बात आ जाती है कि हेल्थ सच में एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री का, स्पेशली रूरल हेल्थ. तो आपका आप सर. जी सर, थैंक यू. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक गवर्नमेंट के हर हॉस्पिटल में एक आरकेएस वो खोला हुआ है, रोगी कल्याण समिति. उसमें जितना भी जो पेशेंट्स दिखाने आते हैं उसका पैसा उसके अंदर जमा हो जाता है. वो एक काफी बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है, जिसमें हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटी छोटी कंज्यूमेबल थिंग्स वो लोग अपने लेवल पर खरीद सकते हैं. तो एक तो क्या होता है, गवर्नमेंट में पैसे की तो कमी नहीं है, ये बात तो हकीकत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में लोग हिचकिचाते हैं, उसको दूर कर पाते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव टू फॉलो द स्टोर परचेज रूल्स. और अगर वो कहीं इमरजेंसी में कुछ ज्यादा खरीद लेते हैं तो देयर आर सो मेनी ऑडिट्स, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं. तो लोग उसको कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँ तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, कि जहां तक चल जाए वहां तक चल जाए. अदरवाइज जो आगे बढ़ के इसमें काम करने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाता है. तो ये लोग भी समझते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द एरियाज जहाँ गवर्नमेंट के लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं. इवन मैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात बताता हूँ कि वहाँ इतना पैसा है, उसके बाद भी जब मैं कभी हॉस्पिटलों में जाता हूँ विजिट करने तो देखता हूँ कि बेड्स पे फटी हुई चादर पड़ी हुई है या चादर ही नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि वो खरीद नहीं सकते हैं या उनके पास पैसा नहीं है, खरीद सकते हैं, लेकिन यही है कि कौन इस उसमें पड़े झंझट में. Sir, I have one last question. So actually, जैसे अभी on the line of what Shilpi just asked you, तो ये जो हम चैलेंज देख रहे हैं, तो एक तो अवेयरनेस का हमने बात करी, हमने अभी फंडिंग की भी बात करी, तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चैलेंज भी जो बेनिफिशियरीज के साइड से भी हो सकता है. बिकॉज एक सर्विस, मतलब गवर्नमेंट जो है स्कीम्स दे रही है, सब कुछ चल रहा है, बट उनका अपना एक एटीट्यूड एंड बिहेवियर कि उसको कैसे एक्सेप्ट करें एंड कितना अपने आप को ध्यान करे, कितना अवेयर करे, कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज हो सकता है. आई मीन इफ यू कैन टेल समथिंग अराउंड इट.
ऑफ कोर्स ये दोनों लेवल पे है, ये बेनिफिशियरी लेवल पे भी है और सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे भी है। दोनों को ही इसमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ जैसे कि क्या होता है, अगर एक पुलिस वाला जा रहा हो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, एक पुलिस वाला जा रहा है, उसके सामने तो कोई घटना हो रही है तो वो चुपचाप चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि वो उस थाने का या उस एरिया का कंसर्न नहीं है, वो उस एरिया से संबंध नहीं रखता, तो वो सोचता है कि मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं, वो चला जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है कि अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके सामने देख रहा है कि कोई गंभीर मरीज आ गया, तो वो उसको नहीं देखता है, वो सोचता है और कि यदि मान लो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सब लोग बोलते हैं भाई, फिर लोग क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि ये तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने इसको क्यों देखा और लोग की डेथ हो गई, तो दे ऑल अवॉइड सच थिंग। जबकि ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको देखेगा भी, और अगर उसका भी नहीं होगा, उसके बाद भी वो देखेगा, आपको इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये खास तौर से बहुत चीजें हैं, ये है कि जो जिसके लिए है वो उतना ही काम देखेगा। इसके अलावा अगर वो देखना भी चाहता है, उनके मन में भी होता है कि वो देखें, लेकिन वो अवॉइड करते हैं कि पुराना उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता। तो मैंने कई डॉक्टरों से बात की है, वो बोलते हैं कि यार हमको लगता है कि हमको उसको देखना चाहिए, लेकिन बाद में यदि कुछ हो जाता है, यदि वो उसकी डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो उनके ऊपर इंक्वायरी खड़ी हो जाएगी कि आपने क्यों देखा, आप तो इसके इंचार्ज नहीं थे, आपका तो समय वहां पे था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फिर उठने लगते हैं, तो इसलिए दे अवॉइड टू गिव ए क्वालिटी सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज। So I had one question. Yeah, Shalini first, Shalini. हाँ बोलिए। Oh, sorry, Sakshi. पूछिए Sakshi. So the problem about कि numbers of doctors is less in India. तो जब हम बात करते हैं कि एडमिशन लेने की किसी भी मेडिकल कॉलेज में या जो भी है, मतलब वहां पर इतना करप्शन है एडमिशन प्रोसेस में। Like if a student really wants to become a doctor, he has to pay like a lot of money to get admission in that institute. तो कहीं ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पर कि एक सब्सिडाइज एजुकेशन हो मेडिकल सेक्टर में, कि ताकि हम हमारे डॉक्टर्स का नंबर बढ़ा सके कंट्री में, so something like that. देखिए डॉक्टर्स का अगर हम केरला जाते हैं, और आप केरला जाइए तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बहुत हैं, डॉक्टर्स भी बहुत हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो वहाँ डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, केरला में कोई कमी नहीं है, तमिलनाडु में कोई कमी नहीं है, बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस हैं मोर, डॉक्टर्स हैं मोर, और वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ के हेल्थ इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं, ऑल इंडिकेटर्स और अच्छे। लेकिन जहाँ पर पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, जो बीमारू स्टेट अभी भी उस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेजेस कम है, डॉक्टर्स कम है, डॉक्टर्स सरकारी उसमें जाना नहीं चाहते, तो ये सब समस्या है। इवन मेडिकल कॉलेज भी बढ़ जाए, लेकिन स्टिल दे डोंट वांट टू गो इन रूरल एरियाज। वो चाहते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद अच्छा सा कुछ पीजी कर लें और उसके बाद वो अर्बन एरियाज में ही रहें। तो ये बात जरूर है कि इन प्राइवेट सेक्टर द फीसेस आर मोर, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्स खोल दिए हैं जहाँ पे फीस लगती नहीं है, मतलब बहुत ही कम फीस है। मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फीस बहुत कम है। इवन उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज भी अब काफी खुल गए हैं जहाँ डेफिनेटली फीस काफी है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस कम है, बट द करप्शन इज मतलब करप्शन है वहां पर। लाइक जो भी मतलब अगर एक बच्चा जाना चाहता है तो ही हैज टू पे lakhs of rupees टू गेट एडमिशन ओवर देयर, भले ही उसने काफी मतलब उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया हो या जो भी हो। तो इस करप्शन को चेक करने के लिए कोई सिस्टम अगर हो सका तो मतलब बहुत ही अच्छी बात होगी। लाइक फिर बहुत सारे शायद डॉक्टर बनना चाहेंगे लोग भी। मतलब अभी तो काफी सारा ट्रांसपेरेंसी हो गया है, जब नीट के थ्रू जब एडमिशन होने लगे हैं तो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, उसी से एडमिशन हो जाते हैं। तो पहले से तो कम हुआ है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। आपका एक्सपीरियंस हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मैं मानता हूँ पहले से काफी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि अब एक नीट के थ्रू बच्चों को चांसेस मिल जाता है, जहाँ इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन आपको कम ही करना पड़ता है, जा जाकर अपने आप आपको सीट अलॉट हो जाती है एज पर योर मार्क्स।
अब हो सकता है आपका एक्सपीरियंस इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट हो. Right. Thank you, sir. Yeah. Anybody else? Sir, Mehak has joined, I guess. Yeah, एक मिनट. Mehak has a question, please. Yes, sir. So, we know mental health problems are increasing day by day, like suicides are increasing, and this. So, is government doing anything related to awareing people more about mental health? Because usually people neglect about their mental health, like they are not suffering from it. People don't know about it. Like, so what do you think? Is government doing anything related to it? Yes, of course. एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इज सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट. उनका बेसिकली यही काम है कि वो लोगों तक पहुंचे, उनको मोटिवेट करें. साइकोलॉजिकल कई जगह वो कैंप्स भी लगाते हैं. इवन आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ उनका झुकाव है. वो आके इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी क्लिनिक्स खोल रहे हैं और स्कूलों में जाकर अपने सेशन दे रहे हैं. देयर आर सो मेनी एनजीओज ऑल्सो जो इस सेक्टर में आए हैं. वो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं कि टू मोटिवेट द पीपल्स फॉर नॉट टू टेक अप सच हार्श स्टेप्स. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो जितने प्रयास होते हैं वो करती है. उसके बाद भी कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण चीजें देखने को मिलती हैं. I think I like to substantiate what Binu ji is saying. Mehak, probably आप हमारे अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे ही कोलीग है, बल्कि एडवाइजरी टीम मेंबर है हमारे इस आइडिया के, मिस्टर शिव कुमार. वो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट है, कई वर्षों से कई इंस्टीट्यूट्स में, कई हॉस्पिटल्स में, कई कॉलेजेस में जो आपका सवाल था उस पर आंसर दे रहे हैं. प्लीज हैव अ लुक एट दैट इंटरव्यू व्हिच इज ऑलरेडी ऑन द यूट्यूब. एंड अदरवाइज एक दिन मैं उनको भी बुलाऊंगा और आप बच्चों को जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन या व्हाटएवर इट इज हैपनिंग उसके ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे. तो वी हैव अ वेरी गुड स्पेशलिस्ट ऑन बोर्ड ऑफ दैट. विल डिस्कस ऑन दैट लेटर ऑन. दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बिनु जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं. उसी संदर्भ में मैंने और नारायणी ने पिछले साल कोरोना के बेसिस पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ही डीप एनालिसिस किया. बहुत मेहनत करके हमने बहुत ही एनालिसिस किया है. जिनको वो इंटरेस्टेड हो वो पहला प्लीज मेरे से पेपर ले लें या हमारी वेबसाइट में भी पढ़ा होगा शायद, जहां हमने हेल्थ स्ट्रक्चर और बजट दोनों बातें, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इतना अच्छा कोरिलेशन एनालिसिस किया है बताने के लिए कि हर सरकार का एक एक रुपया कैसे यूज हो रहा है या कैसे वेस्ट हो रहा है. I think please go to that. Nice. But yes, any other questions, please? Sir, I have a question. Actually, excuse me, please, if I have a silly question. Actually, my GK is very poor. So, मतलब AIIMS like institutions and AIIMS are like different or just same? As you indicated in the PPT, कि there are 6 AIIMS like institutions in BIMARU states. तो वो AIIMS और AIIMS like institutions are मतलब different और those are same? एम्स जितने भी हैं भारत सरकार की तरफ से हैं, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ही बने हो. तो एम्स तो सभी जगह जो है दे गिव द क्वालिटी एंड टर्शरी केयर्स फॉर द पीपल. पहले तो ये पहले माना जाता था कि सिर्फ दिल्ली में एम्स था, तो जितने भी पेशेंट्स थे रेफर करके जो नॉर्मल टर्शरी केयर के ही पेशेंट थे वही जाते थे. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. अभी मैं देखता हूँ कि अभी तो एम्स में हर तरह का इलाज अवेलेबल है, हर तरह के पेशेंट्स वहाँ पे जाते हैं. तो अब वो रेफर्ड वाला सिस्टम अभी शायद नहीं है. तो एक क्वालिटी हेल्थ केयर लोगों को मिल रही है, इजी एक्सेसिबल हो रहा है. तो जैसे बोलते हैं ना, मोर द आउटलेट्स मोर द सेल, या मोर द आउटलेट्स मोर द केयर. तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोगों को इतना दिल्ली नहीं जाना पड़ता था, अब उनके शहरों के आसपास ही इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस आ गए. तो ये डेफिनेटली जो आपने बताया हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करेंगे. Yes, anybody else before we move on? Sir, actually I have a question that अभी तक आपने सर बहुत प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया, तो डोंट यू थिंक दैट वी शुड हैव एन अम्ब्रेला बॉडी या कुछ ऐसा एक ऐप हो जिसमें सारे इंफॉर्मेशन को अलाइन कर दिया जाए? लाइक सर राकेश सर ने मुझे बताया था कि हर दर्शक करके एक ऐप है, उसमें वी हैव लाइक इंटाइटलमेंट्स क्या है हमारे,
उनके बारे में we know, then don't you think sir कि अगर health sector में भी ऐसा कोई एक ऐप हो, तो we should recommend that as well, so that entitlements क्या है हमारे वो हमें पता रहे. Yes, Binu ji. Entitled means आप कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं? Yes sir, because इतने स्कीम्स हैं, इनफैक्ट इसमें से 50% स्कीम एक नॉर्मल कॉमन पीपल को पता ही नहीं होता है कि इतने स्कीम्स हैं भी. इनफैक्ट पहले चल रहे हैं. इट्स लाइक ऑलरेडी, मैं नया नहीं लाने बोल रहा हूँ, इट्स लाइक ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसमें जो इंटाइटलमेंट है उनको जानने के लिए. जितने भी चल रहे हैं उनके अपने अपने व्हाट्सएप हैं, अपनी अपनी ऑनलाइन सिस्टम से वो लोग काम करते हैं, अपने अपने एक वीक मनाते हैं, कोई मंथ मनाता है, तो एक अवेयरनेस के लिए वो लोग सब अपने अपने, जैसे मैंने आपको इनलिस्टेड बताया, एनएचएम में इतने सारे जो बीमारियों के उनकी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, वो कभी ना कभी अपनी हर साल के अंदर कुछ वीक मनाते हैं. जैसे अभी आयुष्मान भारत का एक आयुष्मान आपके द्वार एक चल रहा है, उसका कंपेनिंग करते हैं, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं फॉर द टारगेट बेनिफिशियरीज को. सबको नहीं देते. फॉर एग्जांपल जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो उनको आयुष्मान से मतलब नहीं है, उनको हम लोग अप्रोच नहीं करते, उन्हीं को करते हैं जो बेसिकली इसका बेनिफिट लेने वाले हैं. तो उसके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आशा और आंगनवाड़ियों के थ्रू कंपेनिंग करते हैं. तो सभी लोग अपना अपना करते हैं किसी न किसी तरह से कि टारगेट अप्रोच, टारगेट बेनिफिशियरी तक पहुंचने के लिए. बिनू जी, शायद शुभम कहना चाह रहा है कि वो मैं समझ गया सर, हेल्थ का पोर्टल हो. वो मैं समझ गया शुभम जो कहना चाह रहा है कि आपका एक व्हाट्सएप हो जिसमें वो खुद अपने सब लोग अपनी इंटाइटलमेंट समझ पाए. तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप तो सर बहुत छोटा हो जाएगा, 6 से ज्यादा लोग जोड़ नहीं सकते. डिजिटल सर एक यूनिवर्सल डिजिटल जो कर रहे हैं, शायद अगर आपको यूनिवर्सल हेल्थ के बारे में अगर जानना हो तो एनएचएम के पोर्टल पर जाकर इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और ऐसा आई थिंक दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म. और अगर आपको इंडिकेटर जानना हो तो उसमें इंडिकेटर्स भी मालूम पड़ जाते हैं. और एनएफएसएससी जो इंडिकेटर्स तय करता है, उसकी साइट पे भी जाकर आप हर एक स्टेट के इंडिकेटर्स ले सकते हैं, हेल्थ के इंडिकेटर्स. राइट. तो देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म जहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो. और आप बोलो एक प्लेटफॉर्म पे, यस सर, एग्जैक्टली एक प्लेटफॉर्म कि एक प्लेटफॉर्म पे कोई अवेलेबल है कि नहीं. लाइक सर अगर कुछ भी ढूंढना होता है हमें तो वी गूगल इट, लाइक वैसा कुछ हो जाए जैसे हेल्थ से रिलेटेड, तो वी गो टू दैट साइट एज वेल. ऑफ कोर्स सर वी कैन इंक्लूड एवरी स्कीम इन अ ऐप, लाइक कोविन ऐप जो है अभी जो चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसमें ही और ऐड ऑन करते जाए तो it will help everyone, like all people. Yes, Sakshi, that is what I've been telling all of you. एनएचएम की वेबसाइट पर जाएंगे तो उनको एक पॉपअप आपको कोविड का भी दिखेगा. आप उसको क्लिक कर देंगे तो आप कोविड की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. आप उसी में आयुष्मान भारत का भी दिखेगा, आप उसको क्लिक कर देंगे तो आयुष्मान की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे. तो जितनी भी जो वेबसाइट है वो आपस में लिंक किया हुआ है. जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जितने भी उनके अम्ब्रेला नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्लिक करके, आप उसी पे क्लिक करके आप उन दूसरे प्रोग्राम पर पहुंच सकते हैं. साक्षी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इस रिसर्च में हम सबको सीखने की बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है कन्वर्जेंस. एक छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पर बात करेंगे बाद में. आज हमारे बीच अभी अभी सर्वेश चतुर्वेदी भी ज्वाइन किए हैं. सर्वेश, यू आर बिहाइंड द स्क्रीन. कैन यू कम, कैन वी सी योर स्मार्ट फेस प्लीज? आर यू एबल टू लिसन टू अस? सर अभी उठा है वो, ओके. सर्वेश, good morning, sir. I think that won't be a good idea to come in front of the screen. दो कारण है इसको इस समय जो जरा शर्मा रहा है. एक तो इनके ये बीनू जी इनके फादर हैं और मैं इनका छोटा सा गुरु हूँ, तो आई थिंक डर रहा है, शर्मा रहा है. बट यस सर्वेश, इट इज वेरी प्लेजर टू हैव यू विद अस. इंटर्नशिप अंडर मल्होत्रा साहब. यस Sarvesh, you had a internship stint with me. In very brief, how was it? How it helped you? मेरे जो नए दोस्त आना चाह रहे हैं और उससे आपको कैसे आगे कैरियर, मुझे भी लगा. No doubt your father is your mentor. That's always there. But yes, just no, sir, definitely. Your guidance was actually it really helped me along while I was doing my MBA. So I just in brief, I would like to share before going to MBA, I did my MBA from XIMB in Bhubaneswar. So before doing that, I got this opportunity to work under Rakesh sir. So there I basically
the documentation and the research strategy and how we should approach the basic field studies. So that is these are just some points what I got to learn from Rakesh sir. And moreover, what is the homework that should be done behind the reports that should be shared in front of the principal secretary. And so that is some kind of experience that I don't think I even got during the MBA. So this kind of practical experience, I think one can only get under him. And I really thank him for that, because while I was doing my MBA, I actually I was much ahead of my peers. If I say, like my peers did not know that and understood that, okay, this is how practically things will work. And I could directly question my professor, sir, I think in the field, this is what happened. And theoretically things are a bit different. So that is it. And I am actually really thankful. And even right now when I'm working at a microfinance company that is called Saturn, they even, I take some insights from those times and use it. So thank you so much, sir. And yes, Sarvesh. Thank you. It was lovely to have you with us. Sarvesh was a very intelligent person, a worthy son of a worthy father. And yes, तब हमारे को कोरोना नहीं था तो बहुत फील्ड में जाते थे. And Sarvesh in lighter vein, नारायणी already हंसने लग गई, लेकिन lighter vein में सर्वेश को हम छेड़ते थे जब धार गए थे कि बकरी में भैंस में क्या फर्क है, तो ये गलती से गलत बताता था. तो lighter vein, just like that. So शायद शुभम अभी गए हमारे साथ फील्ड में. इस तरह फील्ड विजिट जितनी बहुत करी, मेरा मानना है कि असली ज्ञान वहाँ है, यहाँ नहीं है. पर ठीक है, धीरे धीरे मैंने माना. तो I think it's a high time we say a big thank you to Binu ji. Binu, so nice of you for giving us a time and just a small call, and he readily agreed. That is his greatness. एक बार भी मैंने पूछा भी अगर आपकी कोई मीटिंग होगी तो बिनू जी के वर्ड थे, सर कुछ भी हो आपके लिए मैं छोड़ के जनाऊंगा. तो that is your greatness, sir. So nice of you, and the love and affection you hold for me is something very क्या बोलूं, शब्द नहीं है. But anyhow, wish you all the very best, बिनू जी. और जरूरत होगी तो आपको और तंग करेंगे. हमारे इंटर्न्स और जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, एक्सपोजर करना चाहेंगे, फील्ड में जानना चाहेंगे. Because I believe फील्ड में जाके देखना ही something they learn better. But yes, we'll see to it. So at this moment again, I'd like to thank all of you. Yeah, sure. And now I think Binuji, you can, if you want, you can just log off, and we'll continue with the rest of the program. Fine. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.